السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ شہر کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا وزیر اعلیٰ نے کیا اچانک دورہ، سیلاب کے پانی کے مستقل حل کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ ہفتے کی شب شہر میں بادل پھٹ پڑے، 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش، عام زندگی متاثر، کئی رہائشی علاقوں میں پانی داخل، ٹریفک خلل کا شکار۔ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے گیٹ وے آف حیدرآباد کی تعمیر کا اعلان، وزیر اعلیٰ شہر کی ترقی کے ساتھ عوام کی ترقی پر بھی توجہ دیں۔ اور مجلس کے زیر اہتمام 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری، استقبالیہ کمیٹی کا اجلاس، ذیلی کمیٹیوں کو دی گئی ذمہ داریاں۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔
सैलाब ज़दा इलाके अमीरपेट बुद्धानगर माइत्रीवनम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अचानक दौरा किया। उन्होंने बुद्धानगर में ड्रेन सिस्टम का जायजा लिया और चंद हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने अवाम से मुलाकात की और मसाइल की समाअत की। उन्होंने कहा कि कॉलोनी की रोड से ड्रेनेज का नाला ऊंचाई पर होने से परेशानी हो रही है, जिससे सैलाब की सूरत हाल पैदा हो रही है। वज़ीर आला ने फौरन ड्रेनेज निज़ाम को स्ट्रीमलाइन करते हुए सैलाब के पानी के बहाव को यकीनी बनाने की हिदायत दी। खरीब में मौजूद गंगूबाई बस्ती कुंटा को चंद अफराद पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकामी अवाम ने वज़ीर आला से शिकायत की। वज़ीर आला ने कहा कि खुसूसी ट्रंक लाइन कायम करें ताकि सैलाब के पानी का मुस्तकिल हल निकाला जा सके। इसके लिए अहदेदारों को मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने माइत्रीवनम में सैलाब के पानी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया और मुकामी अवाम से तफसीलात हासिल की और अहदेदारों को मुस्तकिल हल निकालने के इक़दामात की हिदायत दी। वज़ीर आला के हमरा हाइड्रा के कमिश्नर और दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। वज़ीर आला के दौरे के दौरान अमीरपेट बुद्धानगर में वज़ीर आला ने एक लड़के को बुलाकर सैलाब की सूरत हाल के बारे में सवालात किए। इस लड़के ने जवाबात देते हुए कहा कि वो 7वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा है। उसके घर में पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस उसकी किताबें मुकम्मल भीग चुकी हैं। बच्चे ने वज़ीर आला से दरख्वास्त की कि मुस्तक़बिल में सैलाब के पानी से इस तरह के हालात पैदा न हो, इसका मुस्तकिल हल तलाश करें। शहर हैदराबाद मुसलसिल दूसरे दिन भी बादल फटने से लरस गया। तूफानी बारिश से आम जिंदगी कई घंटों तक मफलूज होकर रह गई। हफ्ते की शब हुई शदीद तूफानी बारिश ने कई दहों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जुमा को हुई बारिश से ज्यादा हफ्ते की बारिश गजबनाक रही, जबकि शहर के बेशतर इलाकों के मकानात, दुकानात, अपार्टमेंट्स में पानी दाखिल हो गया। सबसे ज्यादा बारिश नामपल्ली मंडल के तहत गोशा महल में वाक़े बेगम बाजार दूध खाने में रिकॉर्ड की गई, जहां 1 घंटे में 117.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। चार मीनार मंडल के तहत 106.3 मिलीमीटर बारिश हुई। बताया जाता है कि गुज़िश्ता दिनों उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इतनी ही बारिश से गांव के गांव बह गए। अमीरपेट और मलकपेट फ्लाईओवर में 5 फीट से ज्यादा पानी के सबब इन मुकामात पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। अमीरपेट पर एक एम्बुलेंस पानी में फेल हो गई। हाइड्रा के अमले ने इसको पानी से बाहर निकाला। कोठी, दिलसुखनगर, विजयवाड़ा शाहरा की मजदूदी के सबब शहर के कई इलाकों में घंटों ट्रैफिक खलल का शिकार रही। दबीरपुरा दरवाजे के पास 3 से 4 फुट पानी से इस इलाके में ट्रैफिक मफलूज हो गई। आसिफ नगर, हयात नगर में 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं सरूनगर, राजेंद्र नगर, चंद्रायन गुट्टा, अब्दुल्लापुर मेट में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के सबब कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया। मिर्चल, मलकाजगिरी बारिश से शदीद मुतासिर हुए। बंजारा हिल्स रोड नंबर 10, मूसाराम बाग सिग्नल, मल्ले पल्ली की सड़कें झील बन गईं। शहर से मुत्तसिल नवाही इलाकों के अलावा अजला, रंगारेड्डी, वखाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, गदवाल, नारायणपेट, मेदक, संगारेड्डी, कामारेड्डी, नलगुंडा, यदादरी, भुवनगिरी, जंगांव, वरंगल और मुलुगु में शदीद बारिश के सबब आम जिंदगी पर इसका असर देखा गया। शहर में हफ्ते की शब देर गए तक ट्रैफिक खलल का शिकार रही। सैकड़ों गाड़ियां फेल हो गईं। रात भर जीएचएमसी, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस, हाइड्रा और दीगर एजेंसियों के अमले को पानी की निकासी करते हुए देखा गया। शहर के जुनूबी इलाकों में मजलिस के अरकान मुक़न्नना, कॉरपोरेटर्स और सीनियर कायदीन पानी की निकासी और अवाम की मदद करते हुए देखे गए। बारिश की सूरत हाल पर हुकूमत की जानिब से दिए गए इमरजेंसी नंबरात पर सैकड़ों कॉल्स के सबब इन नंबरात तक अवामी रसाई मुश्किल हो रही थी। इतवार की दोपहर और सेपहर में भी कई मुकामात पर हल्की और तेज बारिश हुई। पीर को हल्की राहत की पेश क़यासी की गई। मतला अबरालूद रहेगा। शाम के औक़ात में बारिश का इम्कान है।
गेट वे ऑफ हैदराबाद तामीर करने का ऐलान खुश आइंद है, लेकिन शहर को खूबसूरत बनाना भी इतना ही अहम है। हैदराबाद की तरक्की तो हो रही है, अवाम की तरक्की के बारे में भी वजीर आला सोचें। पेश है हमारे नुमाइंदा शमसुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। वजीर आला के ऐलानात अंदर मिट्टी ऊपर चूना जैसे मुहावरे की तरह हैं। 18 माह की हुक्मरानी में वजीर आला ने जो काम किया है, इसमें सियासी मफाद शामिल है। एक तरफ हुकूमत का खजाना खाली है तो दूसरी तरफ वजीर आला के ऐलानात काबिल गौर हैं। वजीर आला ने मूसा नदी को दोबारा जिंदा करने का अहद किया। इसमें पेशरफ भी हुई, लेकिन अपोजिशन की रुकावटों की वजह से पेशरफ्त रुक गई। वजीर आला ने इसके बाद HCU गच्चीबौली आराजी को तरक्की देने का मसला उठाया, वो भी अपोजिशन के एहतजाज के बाद रुक गया। इसी दौरान वजीर आला ने मार्च के महीने में राजीव युवा विकासम स्कीम के जरिए 5 लाख अफराद को रोजगार फराहम करने की स्कीम का ऐलान किया। इस स्कीम का मकसद बेरोजगार नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए 3 लाख रुपए खर्च की शक्ल में देने का ऐलान किया था, जिसके लिए दरख्वास्तें मिली गईं, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। इस स्कीम पर अपोजिशन या किसी और ने उसकी मुखालफत नहीं की। हुकूमत के पास रकम न होने की वजह से इस स्कीम का आगाज नहीं हो सका। वजीर आला ने हफ्ते की शाम जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए शहर में सयाहों के इस्तकबाल के लिए गेट वे ऑफ हैदराबाद तामीर करने का ऐलान किया। हिमायत सागर के करीब यह गेट तामीर होगी। सयाहों के लिए जब गेट तैयार हो रहा है तो शहर को भी अंदर से इतना ही खूबसूरत होना जरूरी है। वज़ीर आला ने जायजा इजलास के दौरान कहा कि सिर्फ आसमान को छूती हुई इमारतों को तामीर करना तरक्की नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएं जिससे लोगों को रोजगार हासिल हो और हुकूमत की आमदनी भी हो। वज़ीर आला की इस सोच पर गौर करने की ज़रूरत है कि हुकूमत इन्हीं प्रोग्रामों को तरजीह देगी जिससे हुकूमत का फ़ायदा होगा। इसलिए हुकूमत फीस बाज अदायगी स्कीम पर तवज्जो नहीं दे रही है। राजीव युवा स्कीम को नज़रअंदाज कर दिया गया और तो और अक़लियतों के मसाइल पर हुकूमत तवज्जो देना नहीं चाहती, क्योंकि हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक हैदराबाद में दाखिल होने के लिए गेट ऑफ हैदराबाद तामीर करने का ऐलान भी कहीं मजाक न बन जाए, क्योंकि हैदराबाद की सड़कों की हालत इतनी ही अबतर है। 20 माह का अरसा हो चुका है, पुराने शहर की हालत में सुधार नहीं आया। रेवंत रेड्डी के पास अब 3 साल बाकी हैं। इसमें फ्यूचर सिटी तामीर करना है, गेट वे ऑफ हैदराबाद, मूसा नदी की बहाली और हैदराबाद को सैलाब के पानी से पाक करना है। क्या ये मुमकिन है? ये सवाल रियासत की आवाम बिलखुसूस हैदराबादियों के लिए तजस्सुस का बाइस है। आउटर रिंग रोड से शहर के बाबुल दाखिले पर गेटवे ऑफ हैदराबाद की तामीर एयरपोर्ट से शहर के दाखिले की अलामत होगी। वज़ीर आला के ऐलान के मुताबिक ये बाबुल दाखिला अपनी नौयत से तारीखी होगा, जिसमें शहर की अजमत रफ्ता तहजीब को असरी पैराहम दिया जाएगा। यहाँ एक बड़ा तफरीही मरकज़ भी होगा। एक तरफ हिमायत सागर की पुरफिजा सतह तो दूसरी तरफ एक तफरीही मॉडल। मंसूबा तो ठीक है, लेकिन क्या 2 साल में या वज़ीर आला की मियाद के दौरान इसकी तकमील, ये एक बड़ा सवाल है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने आदिलाबाद IT टावर के कामों की पेशरफ्त पर मसरत का इजहार किया। KTR ने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में दूसरे दर्जे के शहरों में IT सनतों को तौसी देने का फैसला किया गया था। नलगुंडा, वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद, महबूबनगर, खम्मम, सिद्दीपेट में IT हब कायम किए गए। अब आदिलाबाद में IT टावर कायम करने जा रहे हैं। आदिलाबाद IT हब में शामिल हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से कहा कि BRS के इस प्रोग्राम के मकसद को जारी रखें और मुकामी अफराद को IT मुलाजमतें दें और रोजगार फराहम करें। BRS पार्टी के साबिक रुकन असम्बली G बालाराजू BJP में शामिल हो गए। नागर कर्नूल जिले के अचम्पेट से नुमाइंदगी करने वाले G बालाराजू ने इतवार के दिन BJP के दफ्तर में सदर रामचंद्र राव की मौजूदगी में BJP में शमूलियत इख्तियार की। रामचंद्र राव ने पार्टी खंडवा पहनकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। रामचंद्र राव ने कहा कि अवाम में BJP की मकबूलियत और वजीर आजम के बहबूदी प्रोग्रामों से मुतासिर होकर अवाम BJP में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बालाराजू की खिदमात लेते हुए पार्टी को मजीद मुस्तहकम और मजबूत करेंगे।
इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली जी वेंकटरमना ने कहा कि रियासत में किसानों की हालत अबतर हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ बारिश हो रही है और इसके बायस कई जगह बारिश नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यूरिया की कमी के बारे में रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ में तजाद है, जिससे किसानों को मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय बीआरएस कायदीन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। वेंकटरमना ने कहा कि कनापल्ली मोटर को ऑन करने के लिए बीजेपी क्यों सवाल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रही है, आवाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम कमीशन रिपोर्ट के जरिए अपोजिशन जमात के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाला 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़क़ीदुल मिसाल बनाने का इस्तक़बालिया कमेटी ने ऐलान किया और इसके मुताबिक ही वसी तर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। माह रबीउल अव्वल की 11 और 12 तारीख को मुनक्किद होने वाला ये जश्न तारीख़ी नौइयत का हामिल होगा, जबकि यह जश्न विलादत बासआदत का 1500 साला होगा। इस्तक़बालिया कमेटी का इजलास सदर इस्तक़बालिया व रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की सदारत में मुनक्किद हुआ। मोतमद इस्तक़बालिया व मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबिक़ रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने कहा कि इस जश्न को तारीख़ साज बनाने इस तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 1500 साल की निस्बत से इस जश्न की अहमियत बढ़ जाती है, बल्कि ये आने वाली नस्लों के लिए भी यादगार होगा। दारुस्सलाम के अंदरूनी और बैरूनी इंतजामात से मुतालिक रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने रिपोर्ट पेश की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महकमे बरक़ी, आबरसानी, पुलिस और दीगर महकमों की जानिब से किए जा रहे कामों को बयान किया। मोतमद इस्तक़बालिया ने कहा कि अजला से आने वाले मंदूबीन का क़याम सिटी कन्वेंशन सेंटर नामपल्ली में रहेगा। अजला से आने वालों के क़याम और ताम के इंतजामात के लिए रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन को जिम्मेदारी दी गई और उन्हें इस सिलसिले में हिदायतें भी दी गईं। बैरूनी आलमदीन व मुक़र्ररीन और शोरा कराम के इस्तक़बाल, उनके सरकारी गेस्ट हाउस में क़याम ताम और सफ़र से मुतालिक उमूर के लिए प्रोटोकॉल कमेटी में महमूद हुसैन इंजीनियर, अज़ीज़ खान पठान, वजहुज़्ज़मा सिद्दीक़ी, फ़रहान सज्जाद, अब्दुल क़ादर खदीर, अतीक़ अहमद, अब्दुर्रहीम, सलीम अहमद और जानी मियाँ शामिल किए गए हैं। सदर इस्तक़बालिया ने मुख्तलिफ ज़ैली कमेटियों के कामों का जायज़ा लिया। इजलास में रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, सदर शोबे तंजीम समद बिन अब्दाद, इंचार्ज हल्क़े असम्बली चार मीनार मोहसिन बलाला, मौलाना फजलुल्लाह मौसवी और दीगर अरकान कमेटी ने शिरकत की। जामिअतुल मोमिनात की जानिब से उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा फ़िक़ही कॉन्फ्रेंस इख्तिताम को पहुंची, जिसमें मुल्क भर से मदऊ किए जाने वाले उलमाए अकराम, मुफ्तियान कराम ने शिरकत की और फ़िक़ही मसाइल और मुदल्लिल कुरान हदीस की रोशनी में खिताब किया। रुकन असेंबली चार मीनार मीर ज़ुल्फ़िकार अली ने भी शिरकत करके खिताब किया। उन्होंने कहा कि किसी भी घर की एक खातून तालीम याफ्ता हो तो पूरे घर को तालीम याफ्ता बना सकती है। जामिअतुल मोमिनात की जानिब से शिरकत करने वालों के मकालजात को तरतीब देकर एक किताब की शक्ल दी जाएगी। नामपल्ली में वाक़े अपनी नौइयत का मुनफरिद व असरी पार्किंग प्रोजेक्ट तामीराती कामों के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। इस सिलसिले में हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने इसका मुआयना किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ महकमेजात की मंजूरी के बाद इसे आवाम के लिए खोला जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट पुरकशिश है। NVS रेड्डी ने बताया कि हैदराबादियों के लिए यह प्रोजेक्ट आलमी मियार के मुताबिक है, जो पार्किंग के मसाइल की यकसुई करते हुए मुल्क का नाम भी रोशन करेगा। దాదాపు 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ని వారు చేయడం జరిగింది. ఇది భారతదేశ చరిత్రలో ప్రప్రథమంగా ఇంత హైలీ సొఫిస్టికేటెడ్ కార్ పార్కింగ్ అన్నమాట. ఇక్కడ అసలు హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఉండదు. ఎవరు కూడా మనుషులు కార్ని పార్క్ చేయటం, ఆ కార్ని మళ్ళీ డెసిగ్నేటెడ్ ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళడం అనేది ఉండదు. ఇది భారతదేశంలో ప్రప్రథమంగా ఇట్లా జరిగింది. ఇక్కడ అంతా కూడా వారు జస్ట్ డ్రైవర్ వచ్చి కార్ని అక్కడ వదిలేస్తే
ఆటోమేటిక్గా ఆ కార్ ఏంటంటే స్లాట్ తీసుకుంటుంది. మొత్తం ఇది 15 అంతస్తులో కట్టడం జరిగింది. అందులో 10 అంతస్తులు దీనికి పార్కింగ్ కోసం కొన్ని క్రింద కొన్ని పైన కేటాయించడం జరిగింది. ఒక 5 అంతస్తులు మాత్రం కమర్షియల్ యాక్టివిటీ, ఎందుకంటే ఇది ఇంత ఖర్చు పెట్టి వారంతటి వారితో చేశారు కాబట్టి మేము కేవలం ఒక అరెకరం భూమిని ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఈ ప్రాజెక్ట్ కట్టడం కోసం. ఇక ఈ పార్కింగ్ చూసుకుంటే కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ అనేటువంటిది ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం చేయడం జరిగింది. ఇది నిజానికి జర్మన్ టెక్నాలజీ, ప్యాలిస్ టెక్నాలజీ అంటాము. ఈ అంటే పజిల్ పార్కింగ్ అన్నమాట. ఆటోమేటిక్గా మీరు అది ఎక్కడ చూసుకుంటుంది, స్పాట్ చూసుకుని దానంతట అదే వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. సో అది ఈ టెక్నాలజీని తీసుకురావడం మొత్తం ప్రపంచంలోనే వారు ప్యాలిస్ వారు చేసినటువంటిది 5 నగరాల్లోనే ప్రపంచం అంతా ఉన్నాయి ఇవి. ఇది 5వ అన్నమాట ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చేయడం అనేది. रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शदीद बारिश के दौरान और बारिश के बाद मुतासर होने वाले मकामात का दौरा किया। रुकन असम्बली ने बलदी हल्क़जात आजमपुरा, छावनी और अकबरबाग में बारिश से मुतासरा इलाकों में अहदेदारों के साथ मुआयना किया। उन्होंने फरतनगर नाले की मुनहदिम शुदा दीवार का भी मुआयना किया। करीब में रहने वालों को वहां से मुंतकिल करने और मुतबादिल इंतजामात पर जोर दिया। अहमद बलाला ने छावनी और ऑफिसर्स कॉलोनी का भी दौरा करते हुए अहदेदारों से कहा कि अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के हमरा हल्का असम्बली याकुतपुरा डिवीजन के तालाब चंचलम और भवानी नगर रोड नंबर 7 और 8 का दौरा करके शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। मजलिसी कायदीन के हमरा हाइड्रा, महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर और दीगर अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर पंप के जरिए पानी की निकासी की गई। मज़कूरा इलाकों में बलदिया और DRS ने भी खिदमात अंजाम दी। दौरे में रुकन बलदिया तालाब चंचलम समीना बेगम के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने चौक मरगा और इसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद चौक के नीचे की दुकानों में बारिश का पानी दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने हाइड्रा की टीमों के हमरा दुकानों में से बारिश के पानी पंप के जरिए निकालकर ताजिरों को राहत पहुंचाई। मुकामी अफराद ने सदर मजलिस और मीर जुल्फ़िकार अली से इज़हार तशक्कुर किया। बाद में मीर जुल्फ़िकार अली ने गुलजार हाउस के ताजिरों से मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की, क्योंकि गुलजार हाउस की बाज़ दुकानों में भी बारिश का पानी दाखिल होने की शिकायतें मौसूल हुई थीं। उन्होंने बलदिया के अहदेदारों को हिदायत दी कि गुलजार हाउस और चौक के इलाकों में मानसून की टीमों को मुतय्यन किया जाए ताकि मेन होल्स की कवर्स की सफाई करके पानी की निकासी को बहाल कर सकें। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ात का दौरा करके बारिश की तबाहकारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब की शदीद बारिश के बाद अपने हल्के के मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अमान नगर बी, जहांगीर नगर और इसके अतराफ वकनाफ के इलाक़ात का अहाता करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया और तरक्याती कामों की अंजामदही के अलावा शहरियों के मसाइल का भी जायज़ा लिया। हालांकि करोड़ों रुपए के तरक्याती काम शहर के मुख्तलिफ इलाक़ात में अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन जब शहर में शदीद बारिश होती है तो फिर से नए मसाइल रौनुमा हो जाते हैं। हफ्ते की शाम की बारिश से तो सड़कों पर 1 फुट या इससे ज़्यादा बारिश का पानी जमा हो गया था और आवाम को संगीन मसाइल का सामना करना पड़ा। इस मौके पर अराकीन बलदिया डॉक्टर समीना बेगम, नसरीन सुल्ताना के अलावा मजलिस की इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के पास फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिलें और ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया। मज़कूरा मुहिम के दौरान एक शख्स नशे की हालत में अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो रहा था कि पुलिस ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हुसैनी आलम के इलाके छोटी सराय में कदीम बोसीदा खाली मकान जो 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था, हफ्ते की शाम की शदीद बारिश से इसकी एक दीवार मुनहदिम हो गई। मुतासरा मकान के जद में आने से 2 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा।
مقامی افراد نے بتایا کہ سال 2023 سے مذکورہ مکان کو منہدم کرنے کے لیے شکایتیں بلدیہ کو دی گئی تھیں، لیکن بلدیہ کی لاپرواہی سے یہ کام نہیں کیا گیا۔ مقامی افراد نے ہفتے کی شب ہائیڈرا اور بلدیہ کو خبر دی۔ مقامی افراد اس خوف میں ہیں کہ مذکورہ مکان گرنے سے ان کے مکان بھی زد میں آ سکتے ہیں۔ ہائیڈرا نے اتوار کے دن فوری حرکت میں آتے ہوئے مذکورہ مکان کو منہدم کروا دیا، لیکن اس پر بھی مکان کے مالک وہاں نہیں پہنچے۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ، آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ شہر کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا وزیر اعلیٰ نے کیا اچانک دورہ، سیلاب کے پانی کے مستقل حل کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ ہفتے کی شب شہر میں بادل پھٹ پڑے، 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش، عام زندگی متاثر، کئی رہائشی علاقوں میں پانی داخل، ٹریفک خلل کا شکار۔ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے گیٹ وے آف حیدرآباد کی تعمیر کا اعلان، وزیر اعلیٰ شہر کی ترقی کے ساتھ عوام کی ترقی پر بھی توجہ دیں۔ اور مجلس کے زیر اہتمام 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری، استقبالیہ کمیٹی کا اجلاس، ذیلی کمیٹیوں کو دی گئی ذمہ داریاں۔ اور ناظرین سے کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV۔ خدا حافظ۔